Methods for learning students as a basis for the identification of objectives or for the selection of objectives for the purpose of curriculum development. We have seen that there are various ways we can gather this information. Now we will look into the details, how this information can be gathered using all these different methods for the purpose of collection of information. Observation by the teachers. Teachers can help us to understand what is happening in the class, and we can find out how do students they behave in the classroom, how well they study, what are the activities they participate and how frequently they are participating in these activities, and what kind of interest is being shown by the students. What kind of relationships they have. Are they too friendly with each other or they are keep on finding differences with each other? आपस में बच्चों के किस किस्म के सोशल रिलेशंस हैं और असातिज़ा के साथ इनका रिलेशनशिप किस किस्म का है? What are the school habits? How well they come to the school? How well formed they come to school? यूनिफॉर्म क्या बहुत साफ आता है? क्या बहुत स्मार्ट स्कूल में आते हैं? या बच्चे अपने आप से बिल्कुल बेखबर स्कूल में दाखिल हो जाते हैं? If we want to interview the students, this is a time consuming process where we involve students in any study. But if we want to study what students' interests are, this is very important that we interview them. While we are interviewing them, it is time consuming and it is very difficult to handle the students during the interview. So what is being done is that we identify a sample of students, यानी हम एक ग्रुप को identify कर लेते हैं. अगर किसी क्लासरूम में 40 बच्चे हैं तो हम तमाम 40 से इंटरव्यू नहीं करेंगे, रादर हम 5 का एक ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हम सिर्फ 5 स्टूडेंट्स से इंटरव्यू कर सकते हैं जो उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे. लिहाजा इन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनसे इंटरव्यू में एक फॉर्मल डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, यानी हाउ डू दे फील अबाउट द डिसिप्लिन इन द स्कूल. Do they like wearing clean uniform every day? Do they like the strictness of the headmaster or headmistress to observe the time? Are they happy about the break time and the kind of activities they are involved in the school? How good they feel about teaching learning process in the classroom? And how good they feel about their teachers and how do they like their teachers and their teaching? How do they respond to other activities which are being offered in the school? Do they like reading club? Do they like environment club? Are they active participant? उनका एटीट्यूड ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में क्या है? क्या वो आपस में दोस्ताना तौर पर रहना चाहते हैं या ज़्यादातर लड़ाई झगड़े में रहते हैं? क्या बच्चों को क्लासरूम में रहना ज़्यादा पसंद है और क्लासरूम में होना इंजॉय करते हैं? और एक्टिविटीज़ जो दी जाती हैं, डू दे लाइक देम? इफ़ दे लाइक देम, to what extent do they like? And what are their interests? Do they want to have a paper pencil test every day or they just want to have a discussion with their teacher? Otherwise, do they like to read, do they like to play or they watch TV or they play video games? So किस किस्म के उनके इंटरेस्ट हैं जो हम उनसे इनफॉर्मली गैदर कर सकते हैं. अगर इंटरव्यू 1-to-1 बेसिस पर है, यानी एक वक्त में आप एक ही बच्चे को इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये आपका इंटरव्यू स्ट्रक्चर भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. हम बच्चों से ये भी मालूम कर सकते हैं कि उनके एस्पिरेशंस क्या हैं. हाउ डू दे लुक लाइक देमसेल्व्स वंस दे विल बी ग्रोन अप. उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है? क्या सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए? क्या स्कूल में आना बहुत ज़रूरी है? और क्या मैथमेटिक्स के स्किल्स हम सबको आने चाहिए? क्या हमें लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए? सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर नहीं, हमें लैंग्वेज वैसे ही आनी चाहिए. इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बच्चों के रवैये और उनकी पसंद नापसंद का अंदाज़ा स्टूडेंट के इंटरव्यू से लगा सकते हैं. पेरेंट्स का इंटरव्यू ख़ास तौर पर हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है जब हम बच्चों की हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं. हेल्थ प्रैक्टिसेस पेरेंट्स की किस किस्म की हैं? Do they stress about cleanliness? Do they stress upon washing their hands every time they are going to the washroom? और खाने के बाद हाथ कितना बच्चे धोते हैं? क्या वो रोज़ नहाने की ताकीद करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों का यूनिफॉर्म हर रोज़ साफ हो?
उनके सोशल रिलेशंस किस किस्म के हैं, आर दे फ्रेंडली विद देयर kids, do they discuss school and what they are doing in the schools with their children, are they concerned that kids they are not going to school on the regular basis, or do they keep an eye on what they are being taught in the school, homework किस किस्म का है, किस किस्म की सरगर्मियाँ स्कूल अरेंज करता है और उनका बच्चा किस तौर पर और किस हद तक इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता है या उनको पसंद करता है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन है जो हम पेरेंट्स के इंटरव्यू से हासिल कर सकते हैं। ये इंटरव्यू अगेन इंडिविजुअल पेरेंट का भी हो सकता है और एक ग्रुप फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा ग्रुप है तो हम एक फोकस ग्रुप डिस्कशन भी अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चनर हमें हेल्प करता है कि ये हम क्वेश्चनर असातिज़ा को भी दे सकते हैं जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, किस एज ग्रुप के हैं, किस तबके से उनका ताल्लुक है, किस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से वो आते हैं, किस किस्म की दिलचस्पियां उनकी हैं, ये तमाम चीज़ें एक क्वेश्चनर में हम इकट्ठी डाल सकते हैं। इंटरेस्ट क्वेश्चनर हम ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बना सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस किस्म की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों को पसंद हैं और वो किस एक्टिविटी में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं। लिहाजा हम इस क्वेश्चनर में उन तमाम एक्टिविटीज़ को रकम करके हम बच्चों से उनकी पसंद नापसंद और उनकी दिलचस्पी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम उनके पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में मालूम कर सकते हैं। क्या उनको दोस्ती पसंद है, उनके कितने दोस्त हैं और वो कितना फ्रीक्वेंटली अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं या चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। ये एक्सचेंज किताबों का भी हो सकता है और रीडिंग बुक्स का भी हो सकता है। वो कितना मज़ा करते हैं जब वो इकट्ठे बैठकर होमवर्क करते हैं और वो किस तरह से एक दूसरे से लर्न भी कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम इंटरेस्ट क्वेश्चनर की बेसिस पे हेल्प कर सकते हैं। रीडिंग हैबिट्स क्या हैं, क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं, क्या आप किताबें दरसी कुतुब के अलावा भी पढ़ते हैं, और हेल्थ हैबिट्स क्या हैं, क्या वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप कुछ करते हैं तो किस किस्म का आपका एक्सपीरियंस है, अगर स्कूल के बाद किसी एक्टिविटी में बच्चे इन्वॉल्व हैं तो वो किस किस्म की एक्टिविटी है और कौन सी वो एक्टिविटी है जो उनको हर हाल में करना पड़ती है। वी कैन गिव देम टेस्ट एंड दिस टेस्ट कैन हैव the skills and we can assess how good they are in reading, in writing, in comprehension in any language about which we want to conduct the investigation. We can check their knowledge about science, mathematics and any other subject area and their attitude and their abilities to solve problems. So we can assess by giving tests, and in these tests students will have to show the knowledge and they can demonstrate their skills, and we can assess the attitude they will be portraying in any of the activities or any activity which is given in the test as a test for the ability of the student and to identify the need for the curriculum. Community records a lot of times gives us information, child mortality उस community में कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मुख्तलिफ डिजीज़ क्या है, डेंगू बुखार हुआ कितने बच्चों को हुआ, हमें ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी रिकॉर्ड और यूनियन काउंसिल के दफ्तर से और हेल्थ सेंटर से भी मिल सकती है। बिल्कुल इसी तरह से हमें मुख्तलिफ तरह के सोशल इश्यूज़ के बारे में और कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्कूल से मिल सकती है, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कम्युनिटी ने अगर रिकॉर्ड रखा हुआ है कि किस किस्म के बच्चे स्कूल में आते थे और कितने बच्चे बीमारी की वजह से यहाँ से चले गए। हम स्कूल के रिकॉर्ड को भी एग्जामिन करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे किस किस्म की इंटरेस्ट शो करते हैं, और इस तमाम इंफॉर्मेशन की गैदरिंग में हम बहुत दफ़ा असातिज़ा और बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। टीचर्स एंड स्टाफ दे कैन पार्टिसिपेट इन दीज स्टडीज़ एंड दे कैन हेल्प अस टू असेस एंड इवेल्युएट द काइंड ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट्स हैव and the needs which are required for the kids of any particular school. Similarly, we can involve students for any kind of investigation जहाँ पे बच्चे हमें हेल्प कर सकते हैं किसी भी सर्वे को कंडक्ट करने में। कितने स्कूल गोइंग बच्चे किसी भी
कम्युनिटी में हैं और कितने बच्चे किस वजह से स्कूल में नहीं आ रहे। अगर स्कूल में नहीं आते तो उनके क्या इंटरेस्ट हैं जो स्कूल फुलफिल नहीं कर पा रहा, और क्या कमी है जो स्कूल बच्चों की दूरी नहीं कर सकता जिस वजह से बच्चे स्कूल में नहीं आते। लिहाजा हम असातिज़ा को, स्टाफ को और बच्चों को अपनी इन्वेस्टिगेशन में किसी ना किसी तौर शामिल कर सकते हैं और एक कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन कैरी कर सकते हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक ज़रूरत के तौर पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको अपने करिकुलम में एज एन ऑब्जेक्टिव दिखा सकते हैं कि हमारे करिकुलम का एक पर्पस ये होगा कि हम बच्चों के इस इंटरेस्ट को फुलफिल करें या इस नॉलेज और कंटेंट की कमी को पूरा करें।